Good morning, class. Today we are going to revise chapter 1, that is Man, Science and Technology. Students, in this chapter, that is Man, Science and Technology, the topics which we have discussed are basically based upon the science and technology, okay, and their relationship with the man. Students, basically, we have studied the uses of science and technology in everyday life. We have studied the changes in human life by the development of science and technology, and we have seen the revolution in different fields due to development of science and technology. So students, basically you can say that the chapter is based upon science and tech, okay, that is science and technology. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे साइंस के यूजेस हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी को हम कैसे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो चेंजेस हुए ह्यूमन लाइफ में साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट के साथ साथ, और जो रिवॉल्यूशंस आए अलग अलग फील्ड्स में उसकी स्टडी हमने इसमें की. सो बेसिकली हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी. सो स्टूडेंट्स, डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी: application of scientific laws, principles and facts in developing means of human welfare is called technology. Students, you can see here application of scientific laws, principles and facts in developing means of human welfare is called technology. So what is technology? It is basically application of scientific laws, principles, facts in developing means of human welfare. Okay. Now students, after this you can see few diagrams. Here you can see that scientific development a boon. Okay, here you can see the spacecrafts, airplane, etc., tractor. They are very helpful. Because of them the day-to-day works, or you can say there is great transformation in the living standards of human being. Okay, now here you can see in this diagram how the science and technology is very helpful in medicinal fields also. You can see here the earth scanner, that is machine to examine the brain. So basically doctors took x-ray, ultrasound, etc. Here you can see the x-ray machine, the endoscopy, etc. So they are result of science and tech. Okay, here you can see students computer games. These are all example of science and tech. Students, as our last topic is revolution, so for this we have to know that what revolution really means. So there were type of revolution in Indian history, and right now also there were occurrence of green revolution, white revolution, blue revolution. So talking about green revolution, what is green revolution? It is basically when the tremendous increase in crop yield by the application of modern agriculture appliances, improved quality of seeds, fertilizers, and proper means of irrigation is called green revolution. स्टूडेंट्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली क्या था कि ट्रिमेंडस इंक्रीज हुआ क्रॉप की ईल्ड में कई एप्लीकेशंस के थ्रू, जैसे कि मॉडर्न एग्रीकल्चर अप्लायंसेस को यूज़ करके, सीड्स की क्वालिटी को एनहेंस करके, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके, प्रॉपर इरिगेशन मेथड्स यूज़ करके, इस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑकर हुआ. ओके, हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी some machines here, that is harvesting of crop with the machine. So development in science and technology result in increasing production of everything, of fish, of eggs, meat, etc., which help in providing nutritious food to increasing population of our country. Now students, you can see that what the revolutionary changes. So revolutionary changes in different fields by development of science and technology can be studied under following headings. Likewise, there were industrial revolution. ओके, तो स्टूडेंट बेसिकली अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, तो आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में हर तरह की मशीन्स हैं, अवेलेबल हैं. स्मॉल मशीन्स हो, लार्जर मशीन्स हो, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है इनकी. ऑल टाइप ऑफ मशीन्स हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री, वॉट एवर इट इज़. वो रेल इंजन हो, एयरप्लेन हो, स्मॉल व्हीकल्स हो, लार्ज शिप्स हो,
तो ये सारी क्या है, ये एक एग्जांपल है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। ओके, हम लोग खुद की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं रिक्रिएशन के मीन्स के लिए, जैसे कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर्स हो गए, टेलीविज़न्स हो गए, आईटी सेक्टर इतना हब हो गया है। सेकेंडली स्टूडेंट्स, हम इसको स्टडी कर सकते हैं एज रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो मास कम्युनिकेशन के फील्ड में भी आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर हो गया, ईमेल सर्विसेज हो गई, इंटरनेट हो गया, ये सारे डेवलप हो रहे हैं बहुत ही क्विकली। ओके, इसको हम इस हेडिंग में भी पढ़ सकते हैं। इंटरनेट, यू कैन सी द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल इज इंटरनेट। इट इज़ द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। मिलियंस ऑफ स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क इन ऑल ओवर द वर्ल्ड are connected through telephone lines. Okay, the computer network connected through telephone lines is called internet. Internet is nothing but the computer network that is connected through a telephone line. Then we are seeing the electronic mail services, that is email. In agriculture also you can see the revolution, like as we all know that population explosion is the burning problem which is challenging the humanity, but population explosion that is resulting in problem of availability of food grains. बट बेसिकली जो इन्वेंशंस हुए हैं हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में भी, जैसे कि इम्प्रूव ट्रैक्टर्स हो गए, प्लग्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, हाई क्वालिटी के सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ, तो ये सारे रिवॉल्यूशंस जो हैं उनकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर भी एनहेंस हुआ। फ्यूल्स में हम देखें अगर, सो ड्राई लीव्स जो होती थी प्लांट की, ट्रीज़ की, या काउ डंग्स जो होते थे, वुड, कोल, केरोसिन, ये सारे जो हैं ये फ्यूल के तौर पे लॉन्ग टाइम से यूज़ हो रहे थे, लेकिन इनको बहुत टाइम लगता है और बहुत लेबर लगता है इनको यूज़ करना एज अ फ्यूल। सो प्रेजेंट टाइम में कुछ फ्यूल्स जैसे कि हम देखते हैं डीजल, कुकिंग गैस, लाइकवाइज एलपीजी, ये सब प्रोड्यूस हुए लार्ज स्केल पे। मेडिसिनल, अभी हमने बात की थी, मेडिकल रिवॉल्यूशन आया, ईसीजी मशीन्स बन रही हैं, एक्सरेज बनी, ये सारी क्या हैं, ये सारी रिवॉल्यूशंस हैं, ये गिफ्ट है ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की भी साइड देखें तो हमारी कंट्री ने कई मिसाइल्स डेवलप किए, लाइकवाइज पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। तो ये सारे हमारे जो रिवॉल्यूशंस थे वो हमने स्टडी किए। अगर हम टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की बात करें 19th सेंचुरी से, तो आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स 18th सेंचुरी में आप देख पा रहे हैं स्टीम बोट, स्टीम लोकोमोटिव रेलवेज हुए। 1815 में मैक एडम ने इंट्रोड्यूस किया था रोड, जो कि स्टोन्स और गटर्स से यूज़ किए गए थे। 1825 में वायर, गाज, लैम्प, ये सब यूज़ किए गए हैं। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं 1830 to 50 तक में वाटर टर्बाइंस, वल्कनाइज्ड रबर। 1850 to 1880 सिंथेटिक डाई स्टफ्स हो गए, आर्टिफिशियल सिल्क रेयन, टेक्सटाइल में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है। प्रोडक्शन ऑफ स्टील, तो स्टील की प्रोडक्शन आप देख पा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में इसका एप्लीकेशन है, बिल्डिंग्स में है, इंजीनियरिंग में है। देन 1890 to 1900 में मास प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर में, स्काई स्कैपर्स बिल्ड किए गए। तो ये सब आप देख पा रहे हैं, अगर मास प्रोडक्शन करें एग्रीकल्चर में तो फूड नीड्स के लिए अप्लीकेबल था, और स्काई स्क्रैपर्स ईजी कंस्ट्रक्शंस के लिए अप्लीकेबल थे। अगर हम बात करें जो 20th सेंचुरी में डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो आप देख पाएंगे फ्रॉम 19 सेंचुरी, दैट इज़ 1900 to 1940, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक्स जैसे कि बैकलाइट वगैरह बनाए गए। 1910 to 1920 में आप देख पा रहे हैं वैक्यूम ट्यूब वॉल्व बनी, रेडियो या वायरलेस कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। 1920 to 1930 में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्किंग हुई। 1930 to 1940 में टेलीविज़न इन्वेंट हुआ। तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि किस तरीके से इन्वेंशंस होते जा रहे थे। और टिल डेट अगर हम अभी तक भी देखें 1950 टिल डेट, तो पर्सनल कंप्यूटर जैसे पीसी, इसका डेवलपमेंट हुआ, बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, स्पेस एक्सप्लोरेशन हुआ, एटॉमिक पावर प्लांट का डेवलपमेंट हुआ। तो ये पूरा चैप्टर था स्टूडेंट। बेसिकली हमने यहाँ पे देखा व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी। सो यूज़ ऑफ साइंस फॉर मेकिंग वर्क ईजियर इज़ टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें जो क्रॉप इल्ड में ट्रमेंडस इंक्रीज़ हुआ है मॉडर्न एग्रीकल्चर में, उसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। और जो डेवलपमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये प्रोवाइड कराता है एडवांटेजेस इन द फील्ड ऑफ industries, you can say industrial field, mass communication, agricultural field, etc. And at last we can see that the control on growing population is necessary to keep the environment balanced. Okay, so this is all about today's lecture. Thank you class.